Assalamu alaikum. So this is our 13th session, and in our previous sessions we have been understanding open economy concepts, and within open economy concepts we have tried to understand balance of payment crisis. So to understand that further, we would look at a few examples from Indian history, and we would take them as our case studies to understand what exactly goes on during a balance of payment crisis. Right? तो इसको देखते हैं. So there have been a few chances of balance of payment crisis in India, and one of the first crisis situation was in 1950s, 1960s. So to be precise, 57, 58, and then again in 66, 67. But these are all tight years. So let's look at them as one crisis situation in India. So 57, you can understand India has just got its independence from the British. और जब British हिंदुस्तान से निकले, and we are looking at the economics of it. We are not concerned with the history, the polity, etc. We are looking at the economics of it. तो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, so almost all economies have to take decisions, right? कि करना क्या है हमको, इस साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, हमें 100 साल बाद कहाँ पे देखते हैं. So you have to look at your economy इन सब सारे प्रिज्म से. Immediate कुछ issues होते हैं, उनको एड्रेस करना होता है. Turns out they decided that they would go with heavy industrialization to begin with. Now, why would they want to do it? They wanted to become self-sufficient in capital investment in particular. And it makes sense as well, because once countries become independent or self-sufficient, and if not self-sufficient and strong enough in this particular field, it has ripple effects. फिर इकोनॉमी के बाकी सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा कीप योर गट हेल्थ क्लीन. इफ़ यू कीप योर गट हेल्थ क्लीन, रेस्ट ऑफ योर बॉडी वुड फॉल इन प्लेस, राइट? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस सेंस में. नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इंडिया डज नॉट हैव अ लॉन्ग और वाइब्रेंट हिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, राइट? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट. नाउ हिस्टोरिकली इंडिया वाज a nation that was doing well when it comes to production. अब इंडस्ट्रीज तो रिसेंट फेनोमेना है, उससे पहले इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, आर्टिजन्स एट्सेट्रा गिल्ड्स होते थे. तो इंडिया वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. तो उसमें इंडिया इज़ अ ह्यूज जियोग्राफिकल मास, एंड ऑफन टाइम्स द मिस्टेक इज़ डन इन दीज कंपैरिजन्स. इंडिया इज़ कंपेयर्ड टू से फॉर एग्जांपल इजिप्ट और द ग्रीक्स और द पर्शियंस. ये कंपैरिजन सही नहीं है. अगर ये कंपैरिजन करना है, देन द करेक्ट कंपैरिजन वुड बी मगध को कंपेयर करना ग्रीक्स के साथ, छोटे से खित्ते को. अगर इंडिया को कंपेयर करना है, इट नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद से फॉर एग्जांपल Western Europe as a whole, because India is a huge land mass. It might appear small on the map because of the projections. मैप में इक्वेटर के रीजन्स वो छोटे हो जाते हैं और पोल्स के रीजन बड़े हो जाते हैं, तो creates that distortion that India is a small land. It's a very big thing, and it's rightly called a subcontinent. It's a subcontinent, and in terms of population, it deserves to be a continent in itself. It's a huge landmass. So the artisans here were doing well. They were the best in the world, and it's not just the Mughals जिनके under ऐसा हुआ. The artisans were good before that as well, from historical times as well. Ancient times, they were good at trade. And one of the phenomena that took place during the Britishers is called deindustrialization of India, जिसमें इंडिया की इंडस्ट्रीज ने heavily suffer किया. And again, we are not going into the history of it. We have to understand the economics of it. The result is that during the British era, India doesn't have a developed industry.
at least heavy industry is not developed. So India does not have a long or vibrant history of heavy industry. That is the problem. At the cusp of independence, heavy industry नहीं है, heavy industry बनानी है. Okay, यहाँ तक clear है, simple है. Now, is this a problem that cannot be solved? No, it's not that. It's a solvable problem. मेरे पास खाना नहीं है, मैं काम करने जाऊंगा, खाना खाऊंगा, पैसे खाऊंगा, खाना खाऊंगा. So खाना ना होना itself problem नहीं है. Problem would be if there's a barrier, for example, मेरे हाथ बंधे हैं, मैं काम नहीं कर सकता. I'm handicapped, मैं काम नहीं कर सकता. खाना ही available नहीं है, तो वो problem हो सकती है. Now, what can India do to establish its heavy industry? India has to import. We are talking about 1950s. India imports a lot of stuff. Is that a problem now? That's also not a problem. अपने घर को देखे, आप अपने घर में मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सब घर पे उगाते हैं? नहीं उगाते, बाहर से लाते हैं ना. So your house is importing things from outside. So is that an issue? It's not an issue. That's how life works, right? What's an issue then? हुआ क्या? Why did India fall into balance of payment crisis? लेकिन आप देखें ना, जब आप मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, आप कमाते भी तो हैं, राइट? यू अर्न समवेयर. India wasn't earning. What does that mean? That means India was lacking exports. And that's understandable. Why? Because exports itself would depend upon industry. Industry है नहीं. Industry नहीं है. So the capital account was weak. The current account is in deficit. ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? When your capital account and your current account both are in deficit or weak, you use your reserves. जैसे इस महीने आपने कमाई नहीं की, लेकिन पिछले महीने आपकी सेविंग है, उस सेविंग को यूज़ करेंगे. इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ है, ब्रिटिशर्स ने निचोड़ा है खून पूरा. इंटरनेशनल रिजर्व्स एनफ नहीं है. रिजल्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. इंडिया कैन नॉट पे फॉर इट्स इम्पोर्ट्स. जीडीपी भी इस टाइम पे बड़ा वीक था, ग्रोथ रेट जीडीपी की. इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस, यू अंडरस्टैंड दिस. देयर हैज़ ऑलरेडी बीन अ वॉर विद वन ऑफ द नेबर्स. देयर हैज़ बीन अ वॉर विद अनदर नेबर. तो ये दोनों चीज़ें हुए हैं. हम 1950s और अर्ली 1960s की बात कर रहे हैं. सो बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस aggravated the problem. India was forced to abandon heavy industrialization at that time. And 1966 के आसपास जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई, उस वक्त वन ऑफ द रीजंस वाज डिफेंस एक्सपेंडिचर एज वेल. डिफेंस का इक्विपमेंट भी बाहर से बहुत मंगाना पड़ा. तो व्हाट डिड इंडिया डू इंस्टेड लेटर? ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड में सेल्फ सफिशिएंसी. सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. 60s ख़त्म हुआ, 70s आया. 70s में इंडिया could not do much. Why? 70s is a very volatile thing around the world. Now this also kind of मेरे उस वाले पॉइंट को ये उसको स्ट्रेंथन करता है जो मैं कहता हूँ कि टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट यू नीड टू नो एवरी सब्जेक्ट. ये आई डोंट हैव एनी अदर वे, ये ऐसे ही होगा. अभी देखिए, जैसे हमने अभी इस पॉइंट को देखा, इट नीड्स सिक्योरिटी इश्यूज़ का इल्म, इट नीड्स इंडिपेंडेंस के पॉलिटिक्स का इल्म, इट रिक्वायर्स ऑल ऑफ दोज नॉलेज. नाउ 1980s को समझने के लिए यू नीड टू नो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यू नीड टू नो वर्ल्ड में क्या हो रहा है इस टाइम. 1980s में, टू बी प्रिसाइज 1970s, लेट 1970s and then 1980, these were crisis years for India. Now why is crisis happening this time? What did India get wrong? Nothing. India was doing fine, still balance of payment crisis because of an external factor, OPEC crisis जिसको कहते हैं. Now what's OPEC? Organization of Petroleum Exporting Countries. 13 countries हैं. 1960s में बगदाद में 5 कंट्रीज़ मिली, उन्होंने डिसाइड किया कि हम बिरयानी खाएंगे. तो बिरयानी खाने के लिए बैठ गए. ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला को फ्रेगरेंस आई बिरयानी की, बोला कि तुम लोग खा रहे हो मुझे भी दे दो. तो वो भी आ गए, तो उनको भी बोला. ओपेक वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग पावर ब्लॉक इन द वर्ल्ड. वाई? 45%
ऑफ ऑयल प्रोडक्शन दुनिया की. दैट मीन्स पूरी दुनिया की नेक पेन का होल्ड. एंड नॉट जस्ट दैट, 80% ऑफ ऑयल रिजर्व्स, जो बाकी ऑयल बचा है उसमें से 80% इनके पास है. नाउ अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल एट इंटरनेशनल लेवल. वाई वुड सर्टन कंट्रीज वांट क्लाइमेट चेंज के पे वर्क करना? It's not as simple as it appears that they are good human beings. That can be the reason. But if you are an enemy to, say, for example, these 4 countries, Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, what would you want? Oil cuts. So that इनका ये पूरा रिजर्व किसी काम ना आए इनके. तो ओके, 1980s में ओपेक क्राइसिस हुआ क्या एग्जैक्टली? 1973 इसको फर्स्ट ऑयल शॉक भी कहते हैं. ओपेक कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि इज़राइल की जिन कंट्रीज़ ने मदद की उन कंट्रीज़ को हम तेल नहीं बेचेंगे. 4 गुना ऑयल प्राइसेस बढ़े. दिस वाज अ मोमेंट व्हेन यूएस वाज ब्रॉट डाउन ऑन इट्स नीज बाय सऊदी अरेबिया. शायद किंग फैसल थे उस टाइम, हार्ड लाइनर. किंग फैसल वाज अ हार्ड लाइनर. खैर, ग्लोबल रिसेशन, हिंदुस्तान में भी हालात ख़राब. अब 73 से निकले नहीं, 79 आ गया. 79 इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑयल शॉक. 79 में क्या हुआ? 79 में ईरानियन रेवोल्यूशन. अब ईरान बहुत ज़्यादा तेल हिंदुस्तान को भी सप्लाई करता था, दुनिया को भी सप्लाई करता था. वहाँ पे जो वहाँ का रूलर था उसको डिपोज किया इस्लामिक रेवोल्यूशन बाय आयतुल्लाह खुमैनी. तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब के अंडर जो रेवोल्यूशन हुआ 79 में मुकम्मल हुआ. So there is huge oil deficit coming out of Iran. How countries are suffering, including India. Now, to add salt to the wound, 1980 में क्या होता है? ईरान इराक वॉर. 79 में ये हुआ और 80 में अब इराक भी इन्वॉल्व हुआ. अभी तक सिर्फ ईरान था, अब इराक भी इन्वॉल्व हुआ. तो सद्दाम हुसैन was at that time ruling Iraq. The reason for that, beyond our discussion, they go for war. Oil supplies are disrupted. India को oil import करना है. Oil is costing too much. Oil is a crucial input for India. What does that mean, crucial input? ये एक ऐसा input है जिसके बिना नहीं चल सकता. जैसा खाना आपके लिए, फ़ोन आप स्किप कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं करेंगे, आप गाड़ी नहीं चलाएंगे हफ्ते भर, लेकिन खाने के बिना कुछ नहीं कर सकते. इकॉनमी के लिए ऑयल ऐसा ही है. For India, it's a crucial import because India does not have huge reserves of oil. तो नहीं कर सकता. क्या करेगा? ठीक, करना पड़ेगा. Second, to complicate the situation, how do you earn dollars? You earn dollars by selling something. What India sells to the world is dependent upon imports. Oil, petroleum products. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है. तो the situation gets मतलब बद से बदतर. The current account deficit because of oil imports is increasing and exports continue to be low. India goes into a balance of payment crisis. So how did India come out of the balance of payment crisis? India adopted a loan from IMF. So getting loans from IMF or any other thing is not something unique to Pakistan. Countries do it. Countries are forced to do it at times. So India took a loan for IMF and it rescued itself from the crisis. 1980s ख़त्म नहीं हुआ, 90s आ गए. And you know 1991, जुलाई 1991 में इंडिया का इम्पोर्ट कवर was less than 2 weeks. ख़त्म हो जाने थे पूरे रिजर्व्स 2 हफ्ते में. नहीं थे हिंदुस्तान के पास पैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा पे करने के लिए. So this import cover gives you the measure of the time period for which the imports can be funded through international reserves. So 2 weeks, which is very less. What should it be? It should ideally be 6 महीने. What is it for India today? It's almost a year, more than a year. India के reserves are enough to sufficient India's imports for more than a year. I think 1.5 year now. Huge reserves. China has humongous reserves. Like US has dollars. US already has dollars. So खैर, तो 1991 में क्या हुआ? अगर आप 91 से पहले के साल देखेंगे ना हिंदुस्तान में इकॉनमी के,
they are preceded by a relatively higher GDP growth. And it's coming from all the three sectors of economy. Primary sector भी अच्छा कर रहा है, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, एग्रीकल्चर अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा है, सर्विस सेक्टर भी अच्छा कर रहा है. एंड एक्सपोर्ट्स वेर ऑल्सो इंक्रीजिंग. हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो रहे थे, येट हिंदुस्तान BOP क्राइसिस में चला गया. वाई वुड दैट बी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक्स. जब 80s में इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकले तो निकले कैसे? एक्सटर्नल डेट लेकर, राइट? इंडिया हैड टेकन 1980s में लॉट ऑफ फॉरेन लोन्स और इनकी रिपेमेंट स्टार्ट हो गई थी 1980s, लेट 1980s में, 1988 अराउंड. नाउ द थिंग इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द गल्फ वॉर 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ, इससे क्या हुआ? इससे हिंदुस्तान के 3 चीज़ों पे अटैक हुआ. कैसे? पहला, ऑयल के कॉस्ट हाई हो गए, स्काई रॉकेटिंग ऑयल प्राइसेस. हिंदुस्तान के लिए क्रूशल इंपोर्ट, कुछ नहीं कर सकता, लेना पड़ेगा, अगर महंगा ही है लेना पड़ेगा. तो लिया, हो गया करंट अकाउंट में और दिक्कत. दूसरा, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स गिर गए. क्यों? बिकॉज एक्सपोर्ट्स भी इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है. दूसरा. तीसरा मसला, we have studied in our previous sessions remittances. Remittances are a huge source of foreign exchange for a country like India at least. Remittances आते सबसे ज़्यादा गल्फ से ही हैं. अब तो नहीं, अब there are other competing countries, but as a whole Arab world is one of the largest sources of remittances in India. Now, the countries from where they were earning dollars and sending to India, the countries are at war. So remittances are also falling. So 3 साइड की क्राइसिस है इंडिया में. एंड द इम्पोर्ट बिल इज इंक्रीजिंग. तो ये सारी चीज़ें मिलाकर करंट अकाउंट डेफिसिट स्टार्टेड इंक्रीजिंग सडनली फॉर इंडिया. अब कैपिटल अकाउंट सब सिग्निफिकेंट नहीं था, एंड द रिजल्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. So we took these few examples to understand how balance of payment crisis actually happens in an economy. Now, the more important thing is, from an economic perspective, what is the solution of a balance of payment crisis? You can think of some very easy solution, like improve your current account balance. वो कैसे होगा? अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करो, अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंस को डिक्रीज करो. तो आत्मनिर्भर भारत बनाओ फॉर एग्जाम्पल. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ध्यान दो सो दैट आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं. और क्या किया जा सकता है? ये तो करंट अकाउंट है. दूसरा पार्ट क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का? कैपिटल अकाउंट. अपने कैपिटल अकाउंट को ठीक करो. कैपिटल अकाउंट को कैसे अच्छा करोगे? बाय इंक्रीजिंग FDI, FPI. आपके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए बाहर से. वो बाहर से आएंगे तो अपने साथ डॉलर लेकर आएंगे. तो एंड इन दिस सिनारियो FPI appears to be a better alternative than FDI. This current account में जो पैसा आता है वो better है than capital account. But why would that be? Because current account में जितना पैसा है वो आपका ही है पूरा, वो परमानेंट है. जैसे आपकी तनख्वाह है, तनख्वाह आ गई है पूरी आपकी है, कोई इसको अब नहीं आपसे छीन सकता. लेकिन जो आपने लोन लिया है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा. इस वक्त तो पैसा आ गया लेकिन कभी ना कभी रिटर्न करना पड़ेगा. तो FDI इज़ लाइक दैट. इन्वेस्टमेंट कहीं से आई तो वो जा भी सकते हैं, राइट? लेकिन जो करंट अकाउंट में पैसा आता है वो कहीं नहीं जाता, वो आपका है. सो कैपिटल अकाउंट में लोन्स यू विल हैव टू गिव बैक. या फिर NRIs के जो डिपॉजिट्स हैं आपके कंट्री में वो भी कैपिटल अकाउंट में आते हैं. लेकिन वो भी तो डिपॉजिट किसी दिन मैच्योर होंगे. मान लीजिए 10 साल की FD है, 10 साल बाद तो वापस करने हैं. एंड देन इवन अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट गोज बैक FDI में. तो कैपिटल अकाउंट का मसला ये है. तो करंट अकाउंट को ही स्ट्रेंथन करना बेहतर रहता है. तो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना बेहतर रहता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना बेहतर रहता है. व्हाट एल्स कैन बी डन? IMF से लोन लें. IMF लोन बड़ी मदद करते हैं क्राइसिस की सिचुएशन पे. लेकिन IMF के साथ मसला है, इट कीप्स सम कंडीशंस व्हेनेवर इट गिव्स लोन्स. एंड मुस्लिम्स के लिए इन पर्टिकुलर ये कंडीशंस बड़ी कंट्रोवर्शियल है. बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ मुस्लिम्स थिंक दैट
IMF की जो कंडीशंस होती हैं दे आर ये बाइस्ड हैं कंडीशंस. आई डो नॉट नो बट आई डोंट थिंक सो. मतलब इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट अब मैं बना नहीं कि मैं फतवा जारी कर दूं कि ऐसा नहीं है. देयर आर रिस्पेक्टेबल पीपल हु से दैट कि IMF का है डबल स्टैंडर्ड. बट ऑन द फेस ऑफ इट सुपरफिशियली जब देखे हमारे लेवल पे जो IMF कंडीशंस इम्पोज करते दे आर गुड इकोनॉमिक्स. एंड यूजुअली कंट्रीज दैट अडॉप्ट दोज मेजर्स जो IMF रेकमेंड करता है दे एंड अप गुड. इन द लॉन्ग रन दे एंड अप गुड. इसको एक और तरीका ऐसे भी देखने का है. द कंट्रीज दैट आर डूइंग गुड इन इकोनॉमिक्स आर डूइंग व्हाट IMF वांट्स देम टू डू, लेकिन अपनी मर्जी से. मान लीजिए कोई XYZ कंट्री है जो अच्छा कर रही है इकोनॉमिक्स में, इट्स इकॉनमी इज डूइंग वेल, तो अगर आप देखेंगे ना वो क्या कर रहे होंगे, वो वही कर रहे होंगे जो IMF की कंडीशंस है. अपनी मर्जी से कर रहे होंगे, उनको कोई BOP क्राइसिस नहीं है. तो BOP क्राइसिस एक लेवरेज देता है IMF को कि अपनी कंट्री को सुधारो. अब इसमें रिसेंट केस आपको पाकिस्तान का पता होगा. सो वन ऑफ द कंडीशंस IMF वांटेड देम टू फुलफिल वाज कि अपनी इकॉनमी को सुधारो. कैसे कि सब्सिडीज़ को थोड़ा कम करो, एंड दैट इज़ गुड इकोनॉमिक्स. अब बट यू कैन अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ अ डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स के लिए इन पर्टिकुलर ये ज़्यादा दिक्कत है. जब आप इस चीज़ को कम करते हो ना, पब्लिक स्पेंडिंग को कम करते हो, सब्सिडीज़ को कम करते हो, यू आर एक्चुअली डूइंग लेस पब्लिक वेलफेयर, एंड डेमोक्रेसी में पीपल आर गोइंग टू वोट अगेंस्ट यू कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया. And they would not understand fiscal responsibility, budget management, balance of payment, ये क्या होता है. They would not understand that. And that's why democracy is good for a very literate audience, literate citizenry. And that's why democracy में schools में बहुत ज़रूरी है law पढ़ाना. Law, polity, economics, social sciences पढ़ाना बहुत ज़रूरी है masses को, so that they understand what's happening. खैर, it's a topic for other day. These conditions जो IMF लगाता है, these can be adopted separately, independently, and these conditions usually involve what? Contractionary policy या फिर currency devaluation. Usually यही दो conditions होती है. I already talked about contractionary policy and we have done sessions on it as well कि what is contractionary policy. But I'll take क्विकली यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से देखते हैं. कंट्रैक्शनरी पॉलिसी मतलब कम खर्चा करो. गवर्नमेंट साहब खर्चा कम करे, अपने खर्चे को कम करे. इसके अलावा मनी सप्लाई को कम करना है इकोनॉमी में. तो लोगों के पास मनी सप्लाई को कैसे कम किया जाएगा? लोगों के पास पैसा है, उसको कैसे कम किया जाएगा? कैसे लोगे उनसे पैसा वापस? उनसे पैसा वापस लेने का तरीका ये है कि आप उनको बॉन्ड दे दो, 10% इंटरेस्ट रेट दे दो. कि अगर इस वक्त पैसा दोगे 1 करोड़ रुपए हमारे पास रखोगे, 10% इंटरेस्ट रेट देंगे. तो दे वुड सी कि गोल्ड पे 5% रिटर्न है, ज़मीन पे 8% रिटर्न है, FD पे 10% है. तो पैसा गया उनके हाथ से, राइट. उनके पास एक कागज़ आ गया, दैट्स ऑल. कागज़ का क्या करेंगे? सो कंट्रैक्शनरी पॉलिसी, दिस वुड रिजल्ट इन लोअर ग्रोथ. यू कैन अंडरस्टैंड. हमने ये कंट्रैक्शनरी पॉलिसी का देखा है. GDP ग्रोथ कम हो जाएगी, लोअर ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम. अब लोअर ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जो जिन चीज़ों की खपत है वो खपत भी कम हो जाएगी, राइट. तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे. अच्छा, आप मैगी इंपोर्ट करते थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है मैगी खरीदने के लिए, तो मैगी की इंपोर्ट कम हो जाएगी. सो अब इंपोर्ट्स कम हो गए तो इंपोर्ट्स पे खर्चा कम हो गया. सो व्हाट यू आर डूइंग इन कंट्रैक्शनरी पॉलिसी, यू आर अवर्टिंग ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बाय स्लो डाउन क्राइसिस. That's why governments and more so democracies do not like this solution. What else can be done? Currency devaluation. Devaluation नाम से पता चल रहा है, devalue करना करेंसी को. क्या होता है? आपकी करेंसी बिक रही है, $1 है 80 रुपए का फॉर एग्जाम्पल. तो डिवैल्यू करेंसी का होना हो गया 80 से इसको 85 कर देना. अब आपके करेंसी की वैल्यू कम हो गई. पहले 80 का ही $1 मिल रहा था, अब 85 का मिल रहा है. तो करेंसी को डिवैल्यू करो. अच्छा, डिवैल्यू एक डिलिबरेट प्रोसेस है, ये खुद कर रहे हैं. एक होता है
करेंसी का डिप्रिशिएट होना, वो हो गया खुद से करेंसी की वैल्यू का गिरना, इसमें किसी का हाथ नहीं था। डिवैल्यूएशन में आप इसको जानबूझ के कर रहे हैं, तो IMF ये कंडीशन लगाता है अपनी करेंसी को डिवैल्यू करो। ओके, अब इसमें क्या मसला है, डिवैल्यूएशन क्यों नहीं मानती है गवर्नमेंट्स, और वो मोर सो इन डेमोक्रेसीज। अब टेक फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, व्हाई वुड गवर्नमेंट नॉट वांट टू डिवैल्यू करेंसी? बिकॉज आई थिंक इट्स अ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा कि रुपए गिर रहा है, और हिंदुस्तानियों को कुछ भी हिंदुस्तान का गिरना पसंद नहीं है। नहीं इवन इफ इट्स गुड इकोनॉमिक्स, गिरना नहीं मांगता है सब उठना चाहिए। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ ए पोलिटिकल थिंग दैट द रुपी इज़ फॉलिंग, बट इन इटसेल्फ उससे क्या होता है रुपी इज़ फॉलिंग? इट्स फॉलिंग विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। हिंदुस्तान में डॉलर थोड़ी चलता है। खैर, नाउ व्हाई वुड दिस बी अ सॉल्यूशन? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में सॉल्यूशन कैसे होगा? आपने एक्सचेंज रेट इंक्रीज की, 80 रुपये का था $1, अब 85 रुपये का डॉलर है, तो आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? आप बेच रहे थे, से फॉर एग्जांपल आप प्रोड्यूस करते हैं निरमा की साबुन। निरमा की साबुन हिंदुस्तान में बिक रही है 10 रुपये में, 80 रुपये में बिक रही है, सो दैट कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। 80 रुपये में बिक रही है, बाहर बिक रही थी $1 में, $1 में। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने $1 कर दिया 85। इससे पहले आपको दोनों जगह एक ही जैसा था, बाहर बेचे या हिंदुस्तान में बेचे, मिलना 80 रुपये ही है, क्योंकि बाहर $1 में बिक रहा था, वो भी 80 रुपये है। बाहर आपको उसको बेचने में खर्चा आ रहा था ज़्यादा, तो आप हिंदुस्तान में बेच रहे थे। अब पास में ही बेचेंगे, फ़ायदा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है। अब 85 हो गया, आपका बाहर बेचने में उसका खर्चा आ रहा है ₹1। योर मार्जिन हैज़ इंक्रीज बाई ₹4। यू वुड वांट टू सेल मोर आउटसाइड दैन इन इंडिया, so your exports would increase because earning the same amount of dollars would give you more in rupees. आपको रुपीज़ में ज़्यादा मिलेगा, और आपकी कंट्री में आपको रुपीज़ चाहिए फाइनली। So your exchange rate increases, your export increases, but that's not the complete story. There is more good to it. The imports are likely to fall. Why? Because they are getting costly. You are earning in India in rupees. आपको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे डॉलर अर्न करने के लिए, उस डॉलर से आप बाहर कुछ खरीदेंगे। सो डिवैल्यूएशन इंक्रीजेज डॉलर्स इन रेवेन्यू एंड डिक्रीजेज एक्सपेंडिचर इन डॉलर्स। इट्स अ two-way attack, and that's why it's highly liked. In fact, countries involve in devaluation deliberately to increase exports. China is accused of it. China of course does not accept कि हम नहीं करते devalue, but it's accused by including India. Western world तो करती ही है। Now, is this currency devaluation a solution for India? अब see, half-baked economist would say devalue करो currency, लेकिन that's why you should know all the nuances. और भी nuances जानना ज़रूरी है। Let's look at one nuance. क्या हिंदुस्तान कर सकता है devalue currency? क्या होगा? ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली ये होंगी क्या? नहीं होंगी। तब भी इंडिया के केस में क्यों नहीं होंगी? बिकॉज इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन क्रूशल इम्पोर्ट्स। हिंदुस्तान का इम्पोर्ट क्रूशल है, उसको कम कर ही नहीं सकते, चाहे आप करेंसी को डिवैल्यू करें $1000 पर डॉलर, ऑयल आपको तब भी इम्पोर्ट करना है। क्या करेंगे? सो इट वुड हैव टू इम्पोर्ट, नेवर माइंड व्हाट इज द कॉस्ट। नाउ दैट इज पार्ट 1 ऑफ द प्रॉब्लम। पार्ट 2 ऑफ द प्रॉब्लम, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। आई टोल्ड यू, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं हमेशा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ज्वेलरी। ज्वेलरी में स्टोन्स और गोल्ड यूज़ होता है, राइट? दोनों इंपोर्ट करता है हिंदुस्तान, खुद के पास बहुत कम है। ऑयल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके लिए ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। सो बोथ केसेस में यू वुड हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रीज। तो आपका फ़ायदा है ही नहीं। सो अब यहाँ पे क्या मसला होगा? आप कह रहे थे अभी तक एक्सपोर्ट्स आपके सस्ते हो जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ पे मसला क्या होगा। जब इनपुट का कॉस्ट बढ़ गया हिंदुस्तान के लिए, ऑयल का कॉस्ट बढ़ गया, पेट्रोलियम का कॉस्ट बढ़ गया, स्टोन्स का कॉस्ट बढ़ गया, गोल्ड का कॉस्ट बढ़ गया,
तो उनके पेट्रोलियम का भी कॉस्ट बढ़ेगा, ज्वेलरी का भी कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो चीज़ें महंगी बेचेंगे बाहर, तो दे वुड नॉट बिकम कॉम्पिटिटिव आउटसाइड इंडिया. So for India, it's not a good solution. India has to look for contractionary policy or IMF loan, or it has to improve current account balance, or it has to improve capital account balance. What has India done? 91 के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हिंदुस्तान में नहीं हुई है, तो इंडिया ने क्या किया? So you can understand कि बाकी दो तो नहीं किए. डिवेल्युएशन करेंसी का कर नहीं सकता था, फ़ायदा नहीं है कोई. डेमोक्रेसी है तो क्या कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी भी यूज़ नहीं कर सकता था. अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में हल्का थोड़ा सा काम किया. एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं हिंदुस्तान ने ज़्यादा अडॉप्ट किया, बहुत ज़्यादा नहीं अडॉप्ट किया, थोड़ा बहुत किया है वक्तन फ़वक्तन. जैसे जब ये वाली क्राइसिस हुई थी, स्लो डाउन क्राइसिस बिकॉज ऑफ कोविड, तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी वुड बी सुसाइडल, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ की थी. हिंदुस्तान ने फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास किया, आई थिंक अर्ली 2000s में, आई एम नॉट श्योर. तो उसने थोड़ा सा गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाया खर्चे करने में, तो क्योंकि उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि इससे ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते. और what India did in all of this time was it strengthened its capital account in particular and current account. तो जिसकी वजह से इंडिया इज अर्निंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डॉलर्स, बहुत ज़्यादा. इसके अलावा भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है. वी आर नॉट गोइंग इनटू इतना ज़्यादा डिटेल्स. अब हमको डायरेक्टली आईएमएफ में एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है कि हमें बनाओ अब आईएमएफ का चीफ. तो बट दिस ब्रिंग्स टू अस, ये जो EFF है, हिंदुस्तान EFF में भी इस वक्त इट इज़ अ क्रेडिटर टू द फंड राइट नाउ. सो इंडिया का इकोनॉमिक जो पावर है ये बहुत इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 20-30 ईयर्स में, बहुत इंक्रीज़ हुआ है. एंड अगर उससे पहले इकॉनमीज़ को कंपेयर करें, लेट्स लुक एट पाकिस्तान एंड इंडिया. तो बिफोर 1990s वी कैन से इट विद लगभग it would not be incorrect to say Pakistan was doing better economics में as an economy. But then why would things happen later for Pakistan? Why would they fall if they were doing good all the way, right? आप 12वीं तक टॉप कर रहे थे और फिर अचानक से फेल हो गए. देयर मस्ट बी सम रीज़न. हाँ, कुछ ना कुछ तो गया. तो आपकी टांग टूट गई, आपका बाजू टूट गया, आप बीमार पड़ गए, आप सर्जरी हो गई, आप पढ़ नहीं पाए, घर में कोई क्राइसिस हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. पाकिस्तान के साथ सारी चीज़ें हुई. टांग टूटी, बंगाल अलग हुआ, ठीक. सो देयर वाज दिस एम्पुटेड लेग, बंगाल अलग हुआ, बहुत रेवेन्यू सोर्स वहाँ से भी आता था, तो वो अलग हो गया. और उसके अलावा व्हाट आई थिंक पर्सनली इज़ पाकिस्तान का इकॉनमी का स्ट्रक्चर सही नहीं था. पाकिस्तान स्टिल रिक्वायर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो वो करेंगे तभी वो सुधरेंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा. और उसमें मुझे ऐसा लगता है, एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ऑल अदर फील्ड्स. आई थिंक पाकिस्तान वाज अलाइन्ड टू US, तो US ने थोड़ा सा साथ छोड़ दिया, तो जो वो करते ही है सभी के साथ, तो वो भी एक वजह रही होगी. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल ऑफ दीज रीजंस इज़ वही स्ट्रक्चर वाला. ये वैसी ही मिसाल होगी कि अगर आप रट्टा लगाओगे, रट्टा लगाते एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन रट्टा काम नहीं करेगा. आपकी इकॉनमी का खुद का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, रेजिलिएंट इकॉनमी होनी चाहिए, सो दैट इट कैन बाउंस बैक इवन 10 years ऑफ मिस रूल. जब आपकी इकॉनमी का स्ट्रक्चर अच्छा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सेहत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो अगर आप बीमार पड़ भी जाएंगे, इट वुड नॉट हैव दैट मेनी रिपरकशन. जैसे जो एबल बॉडीड थे, हेल्दी थे, उनको कोविड हुआ, तो नॉट ऑल ऑफ देम डाइड, सम ऑफ देम डिड, बट पीपल हु ऑलरेडी वेर हैविंग कॉम्प्लिकेशंस, एज़मा जिनको था, निमोनिया एट्सेट्रा, हार्ट कंडीशंस, लिवर कंडीशंस जिनके पास भी थी, सच पीपल, उनका डेथ रेट ज़्यादा था. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस. इंडियन इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत साउंड है,
because of last 70 years of rule, economy बहुत structurally strong बनी है. So it can face a COVID crisis as well. It can face demonetization वाली crisis. It can face 2008 वाला recession. It can face all of those crises because of its resilience, strength. And one of the reasons for that was capacity building. Indian जितने भी rulers इससे पहले थे ना, and उन्होंने capacity building पे बहुत ध्यान दिया. Our discussion on open economy concepts would continue. Next time we meet, we would look at currency devaluation, revaluation, depreciation, and appreciation. So if you have anything to ask within this session, so please do that now.